Hello friends, welcome to my channel. In this course, we are going to discuss daily class question discussion. This course is based on the complete revision syllabus of the UPSC GS course. In this course, we will discuss 10 multiple choice question and 1 descriptive question. Topic of this question is based on the UPSC CSE GS syllabus. By joining this channel, you can complete your whole UPSC syllabus in the form of MCQ and descriptive question within 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. You can learn this topic theoretically and after that watch this video. So it will be benefited to you. Today's subject is international relation and it is mains oriented subject UPSC. So we will going to discuss one descriptive question. What is the question? India and Bhutan have a unique and closer relationships based on the trust, goodwill and mutual understanding. Discuss. Bhutan is a small landlocked country in South Asia. Bhutan is a landlocked country in South Asia. It is located on the eastern Himalaya between India and China. India and Bhutan are close natural partner. Bhutan is a buffer state between India and China. Bhutan and Nepal both are buffer state between इंडिया एंड चाइना. बफर स्टेट वो कहलाती है जब दो लार्ज या बड़े बड़े देशों के मध्य में कोई छोटा ऐसा भू आबद्ध कोई छोटा ऐसा देश होता है जो इन दोनों की जियो पॉलिटिक्स में एक तरह से मतलब वो बीच में वो रहता है. जैसे भारत एक महाशक्ति है, चाइना एक महाशक्ति है. इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो नेपाल और भूटान दो ऐसे देश थे जो बफर स्टेट के बीच में कहलाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड भूटान? ऑन 9th August 1949 भूटान एंड इंडिया साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. भारत और भूटान ने 1949 में मैत्री की एक संधि की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉलिंग फॉर द पीस बिटवीन द टू नेशंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन each other's internal affairs. However, Bhutan agrees to let India guide its own foreign policy and both countries would consult each other closely on foreign and defense affairs. जो भूटान की विदेश नीति होती है उसमें भारत उसको गाइड करता है. मतलब भूटान एक तरह से बहुत सारी चीजों में भारत पर निर्भर करता है. द ट्रीटी आल्सो एस्टेब्लिश फ्री ट्रेड एंड एक्सट्राडिशन प्रोटोकॉल. मुक्त व्यापार और प्रत्यर्पण के बारे में भी ये ट्रीटी बताती है. बुद्धिज्म में शेयर्ड रिलीजन हेरिटेज बिटवीन इंडिया एंड भूटान. भारत और भूटान के बीच में बुद्धिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका है. द इंडिया संत स्वामी पद्मनाभ स्वामी is created with the bringing Buddhism to Bhutan in 8th century BC. तो भारतीय संत थे पद्मनाभ स्वामी, उन्होंने बुद्धिज्म को भूटान में 8वीं सदी पूर्व लाए थे. द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज 699 किलोमीटर लॉन्ग. This is a border of Bhutan and is 699 kilometer long in India. 699 kilometer long. This is 699 kilometer long. The border adjoins the Indian state of Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal and Sikkim. Assam, Arunachal Pradesh, this is Arunachal Pradesh, Sikkim and this West Bengal. The border is open, so citizens of both countries can cross without a visa. However, Indians who want to travel to Bhutan by road need to get an entry permit from Bhutan. भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो खुली है, किसी तरह का उसमें वो नहीं है, मतलब फेंसिंग वगैरह नहीं है. सो भारतीय लोग, सो सिटीजन ऑफ दोनों देश के जो लोग हैं बिना किसी वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं. बट अगर कोई भारतीय रोड के रास्ते भूटान जाना चाहता है तो उसे एक पास बनवाना पड़ता है भूटान सरकार से. परमिट जैसे कहते हैं, वीजा नहीं कहलाता है, एक पास बनवाना पड़ता है. ठीक है. इंडिया ऑफर्स स्कॉलरशिप टू भूटानीज स्टूडेंट हु strengthen the partnership between the two countries. The scholarship are part of India's annual assistance in education. The 720 megawatt Medgachu hydroelectric power
project was jointly inaugurated by the Indian Prime Minister Narendra Modi and his Bhutanese counterpart Loshe Tshering in 2019. There is no diplomatic relation between Bhutan and China. भूटान और चाइना के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इसलिए पूरी भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं, क्योंकि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है और भूटान ने चाइना के साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं बना रखा, इसलिए भारत का ये भूटान एक विशेष मित्र कहलाता है। इंडिया भूटान पार्टनरशिप फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो भूटान को भी असिस्ट करती है। टूरिज्म आल्सो शेयर्ड कॉमन वैल्यूज बिटवीन द कंट्रीज। टूरिज्म में भी जो भूटान का पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ भी भारतीय लोग जाते हैं टूरिज्म में, और अदर डेस्टिनेशंस है जो भारतीय लोग वहाँ भूटान में जाते हैं। भूटान एक मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन रखता है। द डोकलाम इशू वाज ए मिलिट्री स्टेट। अब डोकलाम का विवाद भी चल रहा है जो भूटान की सीमा से लगा हुआ है। द डोकलाम was in military standoff between India and China 2017. The dispute was over the construction of road in Doklam, a disputed area between China and Bhutan. The dispute began when Chinese troops began to extending an existing road in Doklam. Doklam में चाइना के जो ट्रूप्स है, जो मिलिट्री ट्रूप्स है, उन्होंने एक रोड बनाने का प्रयास किया, जब से ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। द डिस्प्यूटेड एरिया इज लोकेटेड नियर द चुम्बी वैली इन सिक्किम एंड इट इज आल्सो नोन एज ए डोंगलोंग। द एरिया इज एन स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट बिकॉज इट्स ओवरलुक द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच कनेक्ट्स इंडिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान एंड द बांग्लादेश। अभी आगे अपन इसको वीडियो में देखते हैं। ये जो है यहाँ पे चाइनीज ट्रूप रोड बनाना चाह रहे हैं, ये भूटान का कौन सा डोकलाम विवाद यहीं से जनरेट हो रहा है, तो ये सीमा पर वो अपना अधिकार करना चाह रहा है, तो भूटान की टेरिटरी है, इससे दिक्कत हो रही है। भूटान को अपनी वो सोवरेनिटी पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो ये चुम्बी वैली है, ये चुम्बी वैली है, यहाँ से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर गया है जो चाइना, तिब्बत और इधर सिक्किम, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको कनेक्ट करता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, BBN स्टैंड फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। द BBN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट is an agreement between these countries to facilitate the movement of people and cargo. The agreement aims to allow the seamless flow of passenger, personal and cargo vehicles traffic between two countries. BBN एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश, भूटान और भारत के बीच। इसमें क्या कहलाता है, ये इसके तहत ये है कि कोई भी व्यक्ति और कार्गो सीमलेस फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को बांग्लादेश से नेपाल जाना है, तो बांग्लादेश से नेपाल से भारत से होकर निकलेगा, तो भारत में चेकिंग वगैरह होगी, उतरेगा चढ़ेगा सामान, तो ये सब बैरियर्स खत्म करने के लिए ये नेटवर्क बना गया है कि जो कोई बांग्लादेश से चलेगा सीधा नेपाल चला जाएगा बिना किसी इंटरनल चेकिंग के, क्योंकि ये इसीलिए इसमें यहीं से इसका ऐसा प्रावधान किया गया है। Hence India and Bhutan are close friends based on the mutual understanding. This will increase the peace and stability in South Asia. So it is correct. So this question has been concluded. If you have any query, you can ask me in description box. Thank you so much.